session we are going to have with the topic of Beyond the Myth, exploring untold stories and unanswered questions in Ramayana and Mahabharata. So we have with us two distinguished personalities today. Let me have the pleasure to call upon the stage Ami Ganatra, author of Ramayana Unraveled and dynamic personality Supanta Bhattacharya. It is said that India's greatest treasures are its stories, and among them, none shine brighter than the epics of the Ramayana and Mahabharata. These two timeless tales have shaped the cultural, moral, and spiritual fabric of India for thousands of years. हम लोग सिर्फ महाभारत और रामायण बचपन से सुनते ही आए हैं. We are all familiar with the key narratives, the valor of Lord Rama, the devotion of Sita, the wisdom of Krishna, and the epic battle of Kurukshetra. But today we step beyond the myth. We delve into the lesser known, untold stories and the unanswered questions hidden within these epics. Stay tuned for such more unanswered questions in this session. Let me introduce our today's speaker, Ami Ganatra, is an alumni of Indian Institute of Management, Ahmedabad. A management professional, she is also a devout yoga practitioner, a certified yoga instructor, and a student of Sanskrit and Indian knowledge systems. Her three books, Mahabharata Unraveled 1, Mahabharata Unraveled 2, and Ramayana Unraveled, are not retellings or imaginations, but an attempt to go back to the original Itihas and present the story, learnings, and nuances for what they are, and make the epics accessible to everyone. To match the energy, we have Supanta Bhattacharya as the moderator for this session. He needs no introduction. I can see the popularity among the students for him. But he is a multiple degree holder, MA, MPhil, MBA, MFA, PhD, and serves as a professor and director, MA English in Hislop College now. Being a theatre person, acted in over 150 plays in various languages, to mention English, Hindi, Bangla, and Marathi. So he's also a quiz master and a poet. So let's not waste time, as this topic itself is so very captivating. It can make us all to dwell deep into the forgetting of the time frame. So I must appreciate the guests to keep the conversation for 40 minutes. Ladies and gentlemen, without any further ado, let's begin with Beyond the Myth, exploring untold stories and unanswered questions in Ramayana and Mahabharata. Over to you. Right, and today's session we have divided into two parts. I'm going to pose a few questions to our guest this evening, and then I'll throw the session open to the house where you can ask her whatever your heart desires, related to the topic of course. Ami ma'am, how did an engineering graduate and a management graduate end up writing books on not her domain area disciplines, but on something that is rather controversial, something that could immediately raise eyebrows and make people point fingers at you? Two dearly loved epics, Indian epics, Ramayana and Mahabharata. Please narrate the journey for us. Thank you so much, Orange City Literature Festival, Pantaji, for having me here. Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna to all of you. Supanji, ऐसा है ना, engineers हम लोग थोड़े dumb होते हैं. I didn't know people point fingers, and I didn't know people get so critical about Mahabharata and Ramayana storytelling when I wrote it. I just wrote it out of curiosity. The thing is, I was doing very well in my corporate and I loved it. So my journey is not one of those, oh, I suddenly had a calling and oh, kya hi kar denge, I was trying to find meaning, aisa kuch nahi tha. But I had a lot of questions. And the questions were more around, what does it mean to be a Hindu? Why do we Indians behave in a certain way? And these questions became even more prominent when I moved abroad. So I used to live abroad. And I had people from multiple countries in my teams.
For me, it was very fascinating to see that while we say that stereotypes don't matter, people from different cultures behave in a very stereotypical way, more often than not. Which included me behaving very similarly to probably a second generation Bharatiya or second generation American Bharatiya, so to say. And in things like if there is a problem, how do we approach those problems? कि सपोज कोई दिक्कत आ गई है, फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसे क्या करें? Now we know, right? Indians we always find way. हम लोग कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल लेंगे. We don't freeze. ऐसा नहीं हो जाता है कि भाई ये प्रोसेस नहीं है तो अब क्या करो? जैसे किसी और का हो जाएगा. तो एक ये बात थी. दूसरा ये था कि by and large हम मानसिक तौर पे भी कल्चर्स को एक्सेप्ट करने में बहुत खुले होते हैं, है ना? हम लोग ये नहीं कहते कि नहीं ये मेरे पुस्तक में लिखा है तो ये यही होगा. जहाँ पर भी हम जाते थे उनका भाव हो जाते, हमारा रूल्स पकड़े रखते हुए. तो यही सारे प्रश्न थे कि ऐसा क्या है, हिंदू होने का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ क्या है. और उसी दौरान मित्रों से चर्चा हुई. महाभारत रामायण पर तो सभी को बहुत ओपिनियंस होते हैं. तो ऐसे ही वाद विवाद चल रहा था कि भाई महाभारत ये तो केवल आई रिमेम्बर अ फ्रेंड से समथिंग कि बहुत ही अच्छी कथा है, पर ये तो केवल आप नॉर्थ इंडियंस की कथा है, हमारा साउथ का कुछ लेना देना नहीं है. फिर कोई और बोलेगा कि नहीं ये महाभारत में तो धर्म अधर्म कुछ है ही नहीं, इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स. और मुझे लगता था यार ऐसा कैसा हो सकता है कि हमारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, सब हमें में है, सब अपना अपना पर्सपेक्टिव. तो जो गुनहगार है उसका भी पर्सपेक्टिव है, तो उसको हम सजा क्यों देते हैं, है ना? अगर सब कुछ अपना अपना ही है तो. एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग. तो बहुत सारा फिक्शन पढ़ा, बट तभी पता ही नहीं था फिक्शन क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है. और भी कंफ्यूज हो गई बिकॉज कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा अरे आई एम राइटिंग फ्रॉम द्रौपदीज पर्सपेक्टिव, कोई बोलेगा नो आई एम राइटिंग फ्रॉम कर्णा's पर्सपेक्टिव, कोई कुछ और बोलेगा, कोई सीता जी के पर्सपेक्टिव से लिखेगा. एंड माय पॉइंट वाज यार आपको कैसे वो पर्सपेक्टिव मालूम, वो तो आपको बता के नहीं जा सकते. तो अगर आपको पर्सपेक्टिव जानना है तो कुछ तो सोर्स ऑफ ट्रूथ होना चाहिए. इवन फॉर वेरिंग पर्सपेक्टिव्स और इंटरप्रिटेशंस आपका फैक्ट बेस तो सेम होना चाहिए. तो वो फैक्ट बेस क्या है, ऐसे तो इन सब का पर्सपेक्टिव देखते बैठो उससे अच्छा लेट मी गो बैक टू द सोर्स. एंड दैट्स हाउ द स्टडिंग हैपेंड. एंड देन बिकॉज़ आई वाज सो फैसिनेटेड विद व्हाट आई रेड दैट द राइटिंग हैपेंड. ओके भाई. सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल ये है कि ये बात एक बार देवदत्त पटनायक जी ने भी कहा था कि इंडियंस को और कोई चीज में कुछ भी ओपिनियन हो चाहे ना हो, रामायण महाभारत पे एवरीबडी हैज एन ओपिनियन ऑन दीज टू एपिक्स. क्योंकि हम लोग ये बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं. हमारे एक बाजू में श्री कृष्ण दौड़ते हैं, एक बाजू में श्री राम दौड़ते हैं. तो एज अ नॉन फिक्शन राइटर, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, ऐतिहासिक सत्य, और अगर हम रामायण महाभारत को लिटरेरी एपिक माने तो ये दो को आप कैसे बैलेंस करके चलेंगे कि उसका हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी मेंटेन करना है, प्लस ये भी उसका जो फैक्टिसिटी है, उसका जो क्या कहेंगे उसको, जो उसका जो फिक्शनल एस्पेक्ट है, ये दो को आप कैसे अपने नॉन फिक्शन में दोनों को एसिमिलेट कैसे करेंगे? देखिए आप जो पूछ रहे हैं ना वो तो डेफिनेशन ही इतिहास का है. आप कह रहे हैं लिटरली द हिस्टोरिकल वैल्यू जो तथ्य है, और जो आप कह रहे हैं फिक्शन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हो द कथा पार्ट ऑफ इट, राइट? एपिक कि ये दोनों एपिक्स, लिटरेरी एपिक्स. सो इतिहास, द डेफिनेशन ऑफ इतिहास इज दैट इट इज पूर्ववृत्तम कथायुक्तम. इट इज पूर्ववृत्तम, जो पहले हुआ है, झालर आदि डेफिनेटली, ठीक है, पहले हुआ है और हमें कथायुक्त बताया गया है. अब कथायुक्त मतलब क्या? कथा तो है ही, बट देयर माइट बी सम मेटाफर्स जो उस कथा को शायद लार्जर देन लाइफ बताने के लिए किए गए हो, या हमें सही से जो उससे सीख मिलनी चाहिए उसके लिए करे गए हो. पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि ये बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तथ्य है, जो एथिकल डायलेमास है, जो धर्म संकट है, जो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत ही सीधी तरीके से वेदव्यास जी ने, वाल्मीकि जी ने बताया है. उसमें मुझे कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है. तो लोग कैसे करते हैं ना, अपना दे वांट टू फाइंड समथिंग न्यू. आई वाज नॉट इवन ट्राइंग टू डू दैट बिकॉज़ आई वाज मैं कोई लेखक तो थी नहीं, है ना? तो मैं तो क्यूरियोसिटी से जिज्ञासा वश पढ़ रही थी. सो जिज्ञासा वश जो मुझे उत्तर मिल रहे थे, आई वाज ओनली पुटिंग इट डाउन. तो आई थिंक बिकॉज़ आई केम विदाउट अ बैगेज ऑफ वांटिंग टू डू समथिंग इन अ सर्टेन वे, इट वाज नॉट डिफिकल्ट. आई जस्ट स्टक टू वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं, वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं. क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि अभी जी आप मुझे बताइए, आप इस
एक्शन को कैसे जस्टिफाई करेगी, कैसे डिफेंड करेगी। मैंने कहा मैं थोड़ी ना डिफेंस लॉयर हूँ, मेरे को काहे करना है डिफेंड, है ना, जो है वो है, मैं तो वो बता रही हूँ, अब उससे आपको जो देखना है देखिए। महाभारत और रामायण के जो पात्र हैं, है ना, हम आज उन पे जजमेंट कर रहे हैं और डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, वो लोग तो आज तक है, इतने वर्षों बाद भी हम उनकी बातें कर रहे हैं, दे हैव लेफ्ट अ लीगेसी। हम बैठे बैठे के केवल जजमेंट का काम कर रहे हैं। और तब मुझे पता चला कि इतिहास पढ़ने का एक दृष्टिकोण होता है। इतिहास के पर्सपेक्टिव्स एक चीज है, बट टू स्टडी देयर इज अ पर्सपेक्टिव टू स्टडी द इतिहास, कि किस दृष्टिकोण से आप देखते हो। केवल ये सही था, ये गलत था, इस पे अत्याचार, उस पे अत्याचार, उस एंगल से देख रहे हो, क्लास स्ट्रगल्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, या फिर अपने जीवन में सीखने के लिए देख रहे हो। अगर आपका थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलेगा तो आपको ये बैलेंसिंग कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। The text speak for themselves. many years ago मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक लोकल न्यूज़पेपर में on the Mahabharata, contemporary relevance of the Mahabharata. I had called it revisiting the book of books, महाभारत को। तो उसमें मुझे जब उसके बाद में लोगों ने उसके बारे में मुझसे डिबेट किया तो मुझे पता चला कि ये लोग मुझसे वाल्मीकि का रामायण या वेदव्यास के महाभारत पे डिबेट नहीं कर रहे हैं, ये लोग रामानंद सागर का रामायण और बी.आर. चोपड़ा के महाभारत पे डिबेट कर रहे हैं। तो ये डिफिकल्टी आपने भी फेस किया, तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? जो लोग एक्चुअली पढ़े नहीं है टेक्स्ट को, सिर्फ वो जो विजुअल उसका जो कंटेंट है उसके बेसिस पे आपके साथ मुझोड़ी जो करते हैं। मैं आपको इस बारे में एक सच्ची घटना जो घटित हुई है वो बताती हूँ। तो जैसे मैंने कहा, मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं था कि लोग रिएक्ट कैसे करते हैं। मैंने तो वही एक्साइटमेंट कह रहे, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है करके लिख दिया। फिर पुस्तक आ गई, महाभारत अनरैवल्ड 1 आ गई, फिर पॉडकास्ट भी शुरू हुआ। तो पॉडकास्ट में जैसे ही जा जाके क्या नया है, क्या मिथ बस्ट हो रहा है, मैं जा जाके कहानियाँ बता रही हूँ, ठीक है। अब मुझे सपने में भी ये नहीं कर समझा कि लोग अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को लेके इतने इमोशनल होते हैं। सो आई सेड समथिंग अबाउट द्रौपदी, समथिंग अबाउट कर्ण वगैरह वगैरह। फिर एक दिन मुझे कोई तो एक यूट्यूब लिंक भेजता है, वो कहते हैं अभिजीत आप देखिए ये क्या है। तो मैंने देखा, सो देयर इज सम एनोनिमस पर्सन, उसने अपना फोटोग्राफ ही नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, एनोनिमस चैनल, उस पर अमी गणात्रा रोस्ट ऐसे करके दिया, ठीक है। और उस रोस्ट में मैं जो बोल रही हूँ उससे कुछ नहीं, पर ये आ गई बड़ी, हमको बताएगी महाभारत क्या है, कर्ण बुरा है, ये बोलेगी इसका। और दे पुट अप द पिक्चर्स, ये देखिए सूखे हुए आम जैसे चेहरे वाली, ये आई है हमें महाभारत बता रहे। तो ये हुआ शुरुआत में, एंड of course it was not something that I had ever expected, right? But then I think I realized that yes, people are, so I learned along the way. The world is full of trolls. Exactly. Now trolls तो trolls रहेंगे, but when somebody has a genuine doubt, I say देखो भाई आप मुझे मत मानना, आप जाके सर्च करो। इसीलिए if you see the पुस्तक, मेरी बुक है, उसमें मैंने लास्ट 50 पेजेस रेफरेंसेस दिए हैं कि मैं कहाँ से ले रही हूँ। क्रिटिकल एडिशन है, गीता प्रेस है, कौन सा श्लोक नंबर है, आप पढ़िए और आपका व्यू बनाइए, है ना। इट इज नॉट ऑन मी, मैं तो जो है वो कह रही हूँ, आपको मानना है। Sorry to interrupt, friends. One amazing thing about these books is these 3 books. It has a wonderful glossary and reference section. So everything is cross-referenced. Alright, she's not speaking into thin air. Alright, every claim that she makes, you can visit the actual site, the standard authentic site of that claim. Okay, so that is a very definitive work. This strategy. Please. So ये तो है कि चलो ट्रोल्स की बात हो गई, but I think sometimes even now that we speak in public, there is a little bit of responsibility on us as well, which I learned along the way, to talk about certain things. जैसे ये तो चलो कर्ण द्रौपदी वाला चलो अलग बात है, but there was something related to रामायण, जिसपे अगर बहुत ही उत्साह में मैंने कह दिया हनुमान जी के पास तो गदा नहीं है, वाल्मीकि रामायण। आपने सुना है वो हनुमान जी के पास? मैं ये कह भी नहीं रही थी कि उनके पास है कि नहीं, आज सिर्फ वाल्मीकि रामायण में गदा का कोई उल्लेख नहीं है, और मैं बस एकदम बिकॉज फॉर मी इट वाज लाइक वाओ, राइट। तो मैं बता रही थी अगेन बहुत बवाल हो गया उसमें, बहुत बवाल, ये हमारी हिंदू धर्म पे प्रश्न उठा रही है, ये हमारी आस्था पे ये कर रही है। बट देन आई रियलाइज कि जब आप किसी की भावनाओं से, स्पेशली धार्मिक भावनाओं की बात कर रहे हो, तो आप उसको एक ट्रिविया बना के नहीं छोड़ सकते। सो आई लर्न फ्रॉम दैट इंसिडेंट। और अभी जब मैं बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ देखो भाई, वाल्मीकि रामायण में गदा का उल्लेख नहीं है, पर वो कोई भी तरीके से
हनुमान जी को डिग्रेड नहीं करता है। इनफैक्ट हनुमान जी को वो और शक्तिशाली बताया गया है जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा। फिर आगे के और रीटेलिंग्स में गदा का उल्लेख है। ऑल्सो जो हमारा उपासना पद्धति है और इतिहास है वो एक ही हो ऐसी आवश्यकता नहीं है ना। तो इतिहास है, पर उपासना जब हम करते हैं तो उसमें जो संत ऋषि जो भी हैं उन्होंने उस भगवान को किस रूप में देखा, मेडिटेशन में, ध्यान में किस भाव में देखा, उस अनुसार करते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज अगर हनुमान जी और उनकी गदा से हम पूजा कर रहे हैं पर रामायण में नहीं है तो हमें आज की सारी पूजा बंद कर देनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है ना। तो वो मैं साथ साथ बताते जाता हूँ। सो आई थिंक नाउ पीपल इवन गेट इट कि भाई उसमें नहीं है, ठीक है। एंड अच्छी बात एक ये हुई कि अ लॉट ऑफ पीपल, in fact I'll tell you something that happened very recently. अभी कोई तो पॉडकास्ट मेरा आया था, उसमें एक कमेंट, वेरी वेरी नाइस कमेंट, आई लव्ड इट। उन्होंने कहा था कि जब मैंने इनको पहली बार सुना तो मैंने जाके गालियाँ ही गालियाँ दी थी कि ये आगे एक नहीं और बताने वाली, और इनको रॉन्ग प्रूव करने के चक्कर में मैंने एक्चुअली जाके पढ़ा। तो मैं इनको, अगर वो मेरा कमेंट पढ़ेगी तो कहना चाह रहा हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि आपके कारण एक तो मैं ओरिजिनल जाके पढ़ा और अब मैं समझ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो वो आप पढ़ के बोल रहे हो, हमें मेरी बात कर रहे हो। तो क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग भी उस हिसाब से हो जाती है। Thank you. Ma'am, एक personal question. Which character from these two epics fascinates you the most? दोनों में से रामायण का एक सबसे फेवरेट कैरेक्टर, महाभारत का एक सबसे फेवरेट कैरेक्टर. How do you analyze their motivations and actions? दोनों में से. Actually, favorite character तो I don't think I can have any because I find all of them extremely fascinating. Positive, negative, all of them. पर मुझे लगता है कि जिस कैरेक्टर के विषय में रामायण में थोड़ी कम चर्चा होती है पब्लिक में, है ना, बाकी सबकी तो होती है, बट जिनकी कम चर्चा होती है वो है विभीषण और सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का जो पॉपुलर डिपिक्शन है कि एंग्री यंग मैन जैसा, है ना, वैसा नहीं है, बहुत ही मैच्योर है लक्ष्मण जी। और जब श्री राम इमोशनली जब वीक हो गए थे, उस समय जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने राम जी को संभाला है, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। एंड ही इज इवन नॉट एक्चुअली, ये वही होता है ना, रीटेलिंग में फिर चीजें बदल जाती है। जो बहुत सारी जगहों पर जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एकदम लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, ऐसा एक्चुअली रामायण में राम जी हुए, एंड ही इज बीन द वन टू एक्चुअली कंट्रोल हिम एंड शांत उनको करते हुए कि भाई नहीं, आप अभी ये सही करना है, आप इमोशन में मत बहिए वगैरह वगैरह। तो लक्ष्मण जी का जो कैरेक्टर है ना वो अत्यंत सुंदर है, और मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि श्री राम वुड बी श्री राम बिकॉज लक्ष्मण जी वाज लक्ष्मण। सो आई थिंक दैट इज वन कैरेक्टर। महाभारत में तो आई थिंक महाभारत का तो सबसे छोटा कैरेक्टर है ना, वो भी समझने जैसा है एकदम, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू हैव इन महाभारत इज फैसिनेटिंग। द्रौपदी जी, उन सब की तो मैं बात करते रहती हूँ, पर भीम है, व्हाट अ कैरेक्टर। He is emotional, unlike Arjun. Arjun is also emotional, but Bhim is even more emotional. He is more rash. But when it comes to कैसे होगी, when it comes to doing something for his family and for his people, he is always there. उनका कुछ जो द्रौपदी के प्रति उनका भाव है और कैसे वो द्रौपदी को खुश करने के लिए चीजें करते हैं। एक थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने रिसेंटली एक नॉवेल लिखा है, पैलेस ऑफ इल्यूशंस। उसके एंड में ये दिखाया गया है कि भीम सबसे ज्यादा द्रौपदी से प्यार करते थे पांचों भाइयों में। पैलेस ऑफ इल्यूशंस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ अ रीटेलिंग ऑफ द महाभारत फ्रॉम द्रौपदी's perspective. To be honest, I don't think we can say that. What we can say from Mahabharat is that भीम सबसे ज्यादा प्यार करेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि भीम सबके लिए ऐसे है ना, वो जो करेंगे, जिनको वो प्रेम करते हैं उनके प्रति वो समर्पित है, and he will do whatever it requires for them. पर हमें जो दिखता है महाभारत में कि द्रौपदी को चाहती है तो सबसे पहले लाकर देने वाले भीम ही थे, तो उस प्रकार से हाँ कह सकते हैं। बट द थिंग इज उनकी पर्सनालिटी वैसी है। दूसरा देखा जाए तो जैसे दुर्योधन में गुस्सा है, वैसे इनमें भी गुस्सा है, ही इज आल्सो लिटिल रैश। बट सबसे बड़ा फर्क जो दुर्योधन और भीम में है वो ये है कि भीम नोज हु ही शुड लिसन टू, whom he should respect। अगर युधिष्ठिर कुछ करेंगे तो उनको बुरा भी लगे तो भी वो वही करेंगे, जबकि दुर्योधन में तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, he behave the way he wants to। The other beautiful character in महाभारत is कुंती माँ। अरे बाप रे बाप, क्या उनके बारे में जितना दिखाया गया, जैसे शुरुआत में वो कर्ण पैदा हो गया, उसको छोड़ दिया, और फिर जो भी ना वो हमेशा रोती बिखराती दिखाई दे रही है, पर ऐसा नहीं है।
अगर बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग, आप सोचिए ना, पांचों भाई इतने स्ट्रॉन्ग है और पांचों भाई सगे भी नहीं है, 3 पांडव और 2 माद्री के, तो 3 कौन थे और 2 माद्री के, फिर भी वो साथ ऐसे रह रहे हैं जैसे सगे भाई है ना, सगे भाई से भी ज्यादा। तो ये कैसे हो सकता है अगर कुंती माना, राइट? तो वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर, इसलिए उन पर भी मैंने एक स्पेशल चैप्टर लिखा है। Madam, that reference to Kunti brings me to my next question. As a woman writer, एक लेखिका होने के नाते आपको ये जो दोनों एपिक के जो दोनों महिला चरित्र हैं, रामायण में इतने सारे हैं, तीनों अपना कौशल्या, कैकेयी तो बड़ी फैसिनेटिंग कैरेक्टर है, सीता है एंड तारा, मंदोदरी, ठीक है। महाभारत में देखिए एक से एक, मतलब द्रौपदी, गांधारी, कितने सारे महिला चरित्र हैं, उनके साथ आप कैसे स्पेशल कोई एफिनिटी महसूस करती हैं? मुझे उनको देखकर बहुत आदर होता है, ऑल ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि यूजुअली हमको क्या बताया जाता है कि अरे वो बेचारी अबला नारियां थी, है ना, पैट्रियार्की वगैरह वगैरह। यार पर आप एक एक कैरेक्टर तो देखो, किस प्रकार वो अपने आप को एसर्ट करती हैं, किस प्रकार वो अपनी बात रखती हैं, किस प्रकार संघर्षों से जूझती हैं। ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं है, संघर्ष है, पर उन सब में भी वो अपना कर्तव्य भाव कभी नहीं भूलती। See, feminism क्या हो गया ना, you want to fight everything and break everything and break this and break that. That is not feminism. That is not any Shakti. Shakti is to hold people together. Shakti is to build things, right? And these are the women, these are the power women who've done that. And let me tell you one छोटू example of how assertive they were, और समाज में किस प्रकार उसको accept किया जाता था। एक छोटा सा कैरेक्टर है, आपने उलूपी का नाम सुना है? कौन है उलूपी? हाँ? She's from Manipur or Arjun wife? नहीं, that not Manipur. हाँ? नागकन्या, उनका बेटा है हीरा अर्जुन का, ओके। तो किस प्रकार उलूपी ने अर्जुन को मनाया अपने साथ विवाह करने के लिए, इट्स अ फैसिनेटिंग चिंटू सा स्टोरी, ठीक है। सो द्रौपदी युधिष्ठिर वाला जो इंसिडेंट होता है, जब इंद्रप्रस्थ में वो लोग बैठे हैं साथ एंड अर्जुन वॉक्स इनटू देम, फिर ही सेड जो उनका रूल बना है कि हाँ 12 साल जो होता है कि वो वनवास पे जाना है, तो सबसे पहले वो हरिद्वार जाता है, गंगा मां में डुबकी लगाता है। तो गंगा मां में जब डुबकी लगा रहा है अर्जुन, तो उलूपी उनको देखती हैं और देखकर एकदम फिदा से हो जाती है, ठीक है। शी इज लाइक मुझे तो ये लड़का चाहिए। सो शी पुल्स हिम, इट इज टोल्ड, और वो अपने महल ले जाती है और अर्जुन से कहती है, हाँ, और अर्जुन से कहती है तुम मुझसे विवाह करो। तो अर्जुन कहता है अरे ऐसे कैसे विवाह करूं, मैं तो भी वनवास पर हूँ और इस कारण से वनवास कर रहा हूँ, प्रायश्चित के तौर पे कर रहा हूँ। तो उलूपी कहती है अरे तुम तो वनवास पर हूँ और इसीलिए मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, क्योंकि मैं वनवास पे हूँ, ये इस कारण से हुआ इसलिए। तो उलूपी कहती है ब्रह्मचर्य का व्रत तुमने लिया है, पर किसके लिए? द्रौपदी के लिए, क्योंकि उसका तुमने रूल भंग किया ना, बाकी किसी के लिए कोई है नहीं। तो इसे ऐसे कैसे? तो शी इज लाइक नहीं, और अगर तुम्हें लगता भी है ना कि तुमको कुछ पाप लगेगा, मेरे साथ जो भी मेरे साथ संबंध बना के तुमको लगता है ना कि तुम्हें कोई पाप भी लगेगा, तो ये बात याद रखना, तुम एक स्त्री को प्रसन्न करोगे, उसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, ठीक है। एंड देन अर्जुन क्या बोल रहा है आफ्टर somebody says this, right? So this is how she is the one approaching, she is logically telling him why this is the right thing to do, and of course she knows that he is not going to stay. उनको ये तो मालूम है कि तो जाने ही वाला है क्योंकि वनवास है, तो she only wants a बच्चा with him, और जब इरावान होता है तो फिर ये चले जाते हैं। So this is how, so इतना छोटा कैरेक्टर भी आप सोचिए कितना assertive है। Even Chitrangada, all the trans persona thing plus the fight she picks with Arjun, चित्रांगदा जो है उसका भी स्टोरी, चित्रांगदा नहीं, तो वो तो सारा फिक्शन है, ठीक है। चित्रांगदा वाला इज वेरी सिंपल। चित्रांगदा का ये है कि जब मणिपुर में जाते हैं अर्जुन, तो ही सीज चित्रांगदा एंड ही फॉल्स इन लव विद हर एंड ही आस्क्स कि किनकी बेटी है, तो वहाँ की राजा की बेटी है। तो वो राजा को ही पूछते हैं, तो राजा से ऑफ कोर्स तुम्हारे जैसा जमाई तो मुझे चलेगा, पर हमारे परिवार की प्रथा है। प्रथा ये है कि अगर आपके संबंध से जो बच्चा होता है वो आपके साथ नहीं आएगा, वो हमारे राज्य का राजा बनेगा। तो अगर ये आपकी सम्मति है तो ही आपको
आप मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो. So it's more simple, it's simpler than what people make it. But the story of Hidimba, again Hidimba is the one telling ना कि भाई भीम तुम मुझसे शादी करो, वो तो उसे बाद में आई होती है और भीम को देखकर एकदम फिदा. भाई को भी मारने को तैयार. भाई को भी मारने को तैयार. Exactly, she's like नहीं पति चाहिए मुझे, यही चाहिए, चाहिए तो यही चाहिए. She is the one who convinces Yudhishthira and Kunti Ma as well. क्योंकि भीम को तो भीम इसे वो जैसे बोलेंगे वैसे करूँगा. तो she convinces Kunti Ma and Yudhishthira. तो ये छोटे-छोटे विलन कैरेक्टर्स भी इतने स्ट्रॉन्ग है तो औरों की तो क्या ही बात है. Ma'am, most of these characters in both the epics, they are very morally conflicted. करे कि ना करे, they are always on the horns of a dilemma. तो आज का जो contemporary society है, vis-a-vis that society, आप ये conflicts को कैसे resolve करोगे? देखिए मुझे लगता है कि हमारे सबके जीवन में ना कॉन्फ्लिक्ट होते ही है. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, जब हम डिसीजन लेते हैं किसी भी प्रकार, ठीक है, तो डिसीजन के लिए अगर हमारे पास दो ऑप्शन है और हम एक ऑप्शन को चूज करते हैं एक ऑप्शन को चूज करते हैं तो दूसरे को मना करते हैं. सो इट इज अ ट्रेड ऑफ. सम ऑफ इट आर जस्ट सिंपल ट्रेड ऑफ्स, ठीक है. सम ऑफ इट आर नॉट सो सिंपल. स्पेशली आपकी जो वैसी पोजीशन है कि आप लीडर हो और आपके निर्णय पर बहुत और लोगों का स्टेक है ना, तब फिर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है वो निर्णय. तो इसलिए आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट तो सबके इसमें होता है, जैसा महाभारत रामायण में. इनफैक्ट आज भी हम क्यों महाभारत रामायण को मानते हैं, जैसे आपने शुरुआत में कहा ना कि हम सबका ओपिनियन है महाभारत रामायण पे. व्हाई आर दे दैट रिलेटेबल? ऐसा क्यों है कि आज भी हम टीम कर्ण टीम अर्जुन करके लड़ रहे हैं? दैट इज बिकॉज वी ऑल रिलेट विद देम सो वेल कि भाई हाँ यही हमारी डायलेमा भी यही है. सिंपल थिंग्स है. से इट्स अ वुमन, should I prioritize my family or my work? A son who lives in US, उसे ये लग रहा है कि भाई मेरा करियर तो यहाँ अच्छा है पर मेरे पेरेंट्स वहाँ पर है, कैसे करा जाए? ये सारे वही है ना. जैसा उसमें राष्ट्र निर्भर नहीं करता, you don't have to go kill anybody, इतना फर्क है. बट ये तो कॉन्फ्लिक्ट्स है ही है and you have to navigate them. इसीलिए why is that we call Gita the money of? Because it teaches us, or rather it gives us a guideline कि भाई how do you navigate these धर्म subjects. उसमें भी वो ऐसा एक आंसर नहीं कह रहे कि ये आंसर है, नहीं. वो क्या कहते हैं कि तुम योगस्थ बनो, तुम अपनी बुद्धि को शार्प करो, तुम स्थित प्रज्ञ बनो, है ना. स्थित प्रज्ञ बनो, ऑब्जेक्टिव बनो और निर्णय लो. वो ये नहीं कह रहे कि यही सही है और यही सही है. वो कह रहे हैं अगर तुम अपने आप पर काम करोगे, इंद्रिय निग्रह करोगे, ऑब्जेक्टिव बनोगे, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए इसका कदाचित तुम्हें रास्ता मिलेगा. कॉन्टेक्चुअलाइज वो रास्ता तुम्हें मिलेगा और उसके बाद भी तुम जो चाहते हो ना वो ही आउटकम होगा, ये जरूरी नहीं है ना. आउटकम पे क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं है. आउटकम पे तो बहुत चीजें हैं, मेनी थिंग्स गेट इनटू डिफाइनिंग द आउटकम. पर फिर भी तुम्हें निर्णय लेना है और जो आउटकम आए उसे स्वीकार भी करना है. So he teaches the approach to managing conflicts. That's the beauty of Mahabharata and Ramayana both. Final question from me. What about the storytelling aspects? I heard the Ramayana tale from my grandmother. I still remember. I mean, I was literally myself and my sister literally, hanging on to her words. Mahabharata was narrated to me by my father. So there's something very compelling. ये जो narrative techniques जो इसमें use हुए हैं. महाभारत कहते हैं कि इलियड और ओडिसी मिला के जितना बड़ा नहीं है उतना बड़ा महाभारत है. 90,000 कुछ 1 लाख श्लोक है उसमें. रामायण भी खैर इतना बड़ा नहीं है. बट इतने सालों बाद आज भी 21st सेंचुरी जनरेशन, 21st सेंचुरी के जो न्यू जेन स्टूडेंट्स हैं, इनको भी महाभारत और रामायण इतने ही अपीलिंग लगते हैं. तो क्या ये टेक्निक्स हैं जो इतने अपीलिंग, इतने कंपेलिंग? मुझे लगता है कि चलो आई थिंक हमारे जनरेशन के लिए तो सबसे बड़ा काम बी आर चोपड़ा जी ने, फॉर व्हाटएवर माय क्रिटिसिज्म इज, थैंक्स टू हिम, है ना. उनके कारण हम आज भी महाभारत की जितने जोश से बात करते हैं उतने कर रहे हैं. तो समवेयर आई थिंक ही गेट्स अ क्रेडिट फॉर इट. बट द अदर थिंग इज महाभारत और रामायण जो है ना वो बहुत ऑनेस्टली बताया गया, ठीक है. उसमें ऐसा बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं किया गया कि इसको ग्लोरीफाई करना है, उसको ग्लोरीफाई करना है, इसको पूरा दिखाना है. नहीं, ऐसा नहीं है. इसीलिए तो उन सब पात्रों के साथ आप इतना रिलेट कर पाते हो, है ना. आप जब अर्जुन के बारे में बात करते हो या इवन कर्ण के बारे में बात करते हो, राम और कृष्ण, राइट, वी रिलेट टू दैट.
हमको उनके साथ गुस्सा भी आता है, उनकी परिस्थिति भी समझाता है। एक तो आई थिंक जो आप स्टोरी टेलिंग की बात करो ना, कि भले लिखा है वो कविता छंद फॉर्मेट में, जिस प्रकार लिखा है और जितना डिटेल में लिखा है, इट्स सो विविड। आप जब सुनते हो तो आपके सामने वो इट प्लेज आउट, राइट? आई थिंक दैट ऑल दैट होल्ड्स, बट मोर देन एनीथिंग इट इज द ऑनेस्टी अबाउट दोज कैरेक्टर्स, एंड वो ऑनेस्टी इसीलिए है क्योंकि ये स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है, ये इतिहास है। वो इतिहास जो हमारे ऋषियों ने, जो उस समय के कंटेम्पररी थे, समकालीन थे, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। वेदव्यास जी जो महाभारत की रचना कर रहे हैं, वो वेदव्यास जी कौन है? कौन है? हाँ, बट वो कौन है? करेक्ट। कृष्ण द्वैपायन व्यास अपने बच्चों की कथा बता रहे हैं। He has no reason to be biased, and he is narrating as he should narrate it. Why? क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीखे और वैसा महाभारत ना ले। तो इसलिए है, तो I think that honesty also shows. That was absolutely fascinating. And now, audience, I'm sure you have lots of questions for Ami ma'am. Okay. One hand at the back. Yeah. Yes, miss. Yeah, you. No, don't look back. Yeah. Could we give her a mic, please? Hello. Namaste, Amish. Just out of context, given narrative of storytelling in history, which story, which sub-story within both of these epics you think has totally, I mean, उसका context जो आज set हुआ है, उस context में वो बिल्कुल ही नहीं लिखी गई थी. Maybe some small anecdote or something of those sorts which you found out while your research, while you were writing, कि ये तो बहुत ही गलत propagate हो रहा है. Actually मैं उस बारे में तो बहुत बात करती हूँ। There are two, एक वो द्रौपदी वाला है और एक वो कर्ण वाला है। I think बहुत ही ज़्यादा। Again when I talk about it, द्रौपदी का तो चलो ठीक है, तो अंधे का पुत्र अंधा, right? Whenever I go and ask कि भाई युद्ध किसके कारण हुआ, अभी recently I was doing a talk yesterday. It was a group full of, I was in Gujarati, और उनके लिए they hadn't seen it क्योंकि बड़े थे सारे, और मैंने पूछा कि महाभारत में युद्ध कोना लेते थे वो, तो तुरंत उत्तर आ गया द्रौपदी का लेते, द्रौपदी के दो आंधड़ा दिखरो आंधड़ो, द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा। बाबा she doesn't say anything like this. Now अंधे का पुत्र अंधा, why is it problematic? कि चलो मसाले के लिए आपने डाल दिया, ठीक है, बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा आपने डाल दिया, पर how is it impacting the narrative? पूरा दोष of महाभारत falls on that lady. And people think अगर वो नहीं बोला होता तो लड़ाई नहीं होती, but नहीं यार, जो द्वेष है that bypasses that incident, right? Right from the childhood. Right from the childhood. तो द्रौपदी तो थी भी नहीं जब भीम को सहने देने की बात आई, द्रौपदी तो थी भी नहीं जब वो लाक्षागृह में चला गया। अच्छा, the other thing that happens is what are you going to learn from the epic? हाँ, स्त्रियां सब लड़ाई का मूल होती है. This is what people learn, right? वाह लड़कियों को कुछ बताना चाहिए. Terrible, absolutely terrible. Whereas the whole theme of both Mahabharata and Ramayana is that shloka of Gita कि हम हमारा नाश क्यों करते हैं? आपको पता है second chapter का श्लोक ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामो कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. This is the theme. महाभारत और रामायण दोनों का ही थीम ये है कि अगर आप आपके कोई भी निर्णय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार इस भावनाओं से लोगे तो आपका नाश ही होगा. रावण और दुर्योधन को क्या प्रॉब्लम था? दुर्योधन को क्या प्रॉब्लम था लाइफ में? क्या उसके पास लग्जरीज नहीं थी? क्या उसके पास राज्य नहीं था? क्या कमी थी? फिर भी जेलसी देखो, अहंकार देखो कि अपने पूरे कुल को वो ले लूंगा, राइट? दैट इज द थीम. पर इतने छोटों से क्रिएटिव फ्रीडम में जो पूरा एसेंस है वो ही धुल गया. सो वन इज दैट. बाकी कार्ड पे तो मैं बहुत बोलती हूँ, तो आई विल गिव इट अ मिस दिस टाइम. Okay. Yeah. Excuse me, Acha, that lady will yes. ma'am, I appreciate your speech. Ma'am, speak in English.
Question please, no observations, friends. मुझे उर्मिला के बारे में भी कुछ सुनना है आपको उर्मिला के बारे में सुनना है वो तो ठीक है, बट वाल्मीकि जी कुछ ज्यादा बताते नहीं है, तो आपको जो भी उर्मिला के बारे में सुनाएंगे वो फिक्शन ही सुनाएंगे, ठीक है? उर्मिला के बारे में आप जो भी सुनोगे एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनका विवाह हुआ लक्ष्मण जी से और फिर उनके 2 पुत्र हुए आफ्टर दे आर बैक फ्रॉम वनवास, सब कुछ किसी ना किसी का अपनी धारणा है, क्योंकि वाल्मीकि जी हमें कुछ नहीं बताते इस बारे में। तो जो ये कह रहे हैं कि वो 14 साल तक खड़ी थी या 14 साल तक सो रही थी, वो भी गलत है। कोई ये कह रहा है कि अरे देखो देखो बेचारी, वो भी गलत है। हर हाँ सब कुछ वी डोंट नो, बट फ्रॉम व्हाट इफ यू सी द थीम और अदर जिस प्रकार स्त्रियों के व्यक्तित्व हैं रामायण में, द हायर चांसेस कि उन्होंने कहा होगा भाई तुम जा रहे हो, तुम वहां अपना काम करो, यहाँ पे मैं संभालूंगा। I would think that is what she would have done if she was anything like Sita. ठीक है, if she knew what her कर्तव्य was. So I would still call her a very strong lady, not a bichara lady who needs to be cried on. Somebody we have to be proud of. We'll have the next question. रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे में एक फ्रेज यूज किया था, काव्य उपेक्षिता। एपिक्स में जो उपेक्षित लोग हैं उनमें उन्होंने उर्मिला को इंक्लूड किया था, तारामती को, मंदोदरी को। ये लोग काव्य में हमेशा नेग्लेक्टेड रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Yes, Yes, we have yes, more questions. please, yeah. Good evening, ma'am. I have been reading you since a very long time. So my question was that being a Hindu, this question raises in my mind again and again that our holy scriptures say that how to balance personal desires and dharma effectively. So in today's world, when we face that conflicting our priorities, so how to perform our dharma in such a way that we should relate with our scriptures? So that's my question. अच्छा, before that I'll say one thing कि I think at least Tara has not been upekshit. Whatever small role she has, it's a beautiful role and very smart. उसकी पूरी personality actually comes out in that. So I'm surprised. No, actually ऐसा नहीं है. Very very solid lady. But anyways, your question is कि how do we balance? Now this question has been with human beings forever. इसीलिए हिंदू धर्म सनातन व्यू है, हम चतुर्विध पुरुषार्थ की बात करते हैं, ठीक है? चतुर्विध कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो चलो इवेंचुअल गोल है, इंडिविजुअल हम जाने दो, बट बेसिकली धर्म, अर्थ, काम। ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये इतने वर्षों से राजा महाराजा भी इसमें एक बात कर रहे हैं। तो श्री राम जब भरत उनसे मिलने आते हैं तो वो उनको एक सीख देते हैं। वो कहते हैं कि अर्थ के लिए धर्म और काम को, काम के लिए धर्म और अर्थ को, और काम के लिए और धर्म के लिए अर्थ और काम को इग्नोर मत करना। लाइफ में तीनों ही होना आवश्यक है। दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, बट द अदर थिंग इज अर्थ और काम। तो काम इज प्लेजर, डिजायर, wanting to do something, wanting to acquire something, that is obviously important, वो होना चाहिए। अर्थ, other resources, पैसे के बिना क्या होएगा यार? भूखिया पेटे भजन न खाए, है ना? पेट तो भरा हुआ होना चाहिए, that's your first thing. So you have to work on it. But let the base of it be dharma. And what is dharma? Dharma is dhareti iti dharma, that which sustains and upholds. Is it sustainable जो आप कर रहे हो? Your desire for something, is it sustainable for you? आपके स्वयं के फिजिकली हेल्थ के लिए, आरोग्य के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके आसपास जो है उन सबके लिए क्या ये सस्टेनेबल है या बर्बाद हो जाओगे, राइट? सेम, पैसा आपके पास बहुत आ गया है ना, पर एक हद के बाद जितना एफर्ट आप डाल रहे हो और पैसे कमाने में, क्या वो सस्टेनेबल है? अगेन आपके लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, वो अगर आप हमेशा सोचते रहो ना, then you will know. And I will not call it balance. I think it is about how act, because it has to change with time. जब आप यंग हो, 20-30 वर्ष के बीच हो, तभी तो आपको ज्यादा एफर्ट अर्थ के लिए करना ही चाहिए, है ना? क्योंकि जब वो होगा, तब you will reach financial stability at the end of about 35-40, and you will be able to do much more from a social aspect. And you have to give back to your family, ना? वो भी मैटर करता है. So at what point in time, what is important? That also matters. But you will know. If you are honest to yourself, अगर आप अपने आप से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ वो सेल्फ अवेयरनेस बनाना आवश्यक है। Thank you. One last
question. Thank you, madam. One final question. We have a very young audience. If you would like to. Okay, two questions. Okay. Keep it short, madam. Huh? Okay. Yeah, please. So, Could we? as ma'am said that there is a lot of difference, like a lot of stereotypes have been made. For example, the Hanumanji did not have a Gada in the Valmiki Ramayana. How can we distinguish this? Two-word answer by reading. Okay, And the reading last the question. original. So the important thing here is to know कि सही क्या है गलत सही क्या है और रीटेलिंग और फिक्शन क्या है, ठीक है? एक्चुअली इतना कठिन नहीं है वो. अगर वेदव्यास जी का महाभारत और वाल्मीकि जी का रामायण ये लिखा है then it is correct. Everything else, especially when somebody says इसका पर्सपेक्टिव उसका पर्सपेक्टिव, then it is their personal perspective. जो एंटरटेनमेंट के लिए आप पढ़िए, ठीक है, पर उससे महाभारत और रामायण मत सीखिए. महाभारत रामायण आर वेरी इजीली अवेलेबल, जो आपको मिल जाएगा, तो आप वो पढ़िए. Okay, उससे we'll आपको just have the last question, One final ma'am. question. This lady. Yes, yes, Yes. please. If you can just ask, yeah. महाभारत में व्यास मुनि ने लिखा है, उनके जन्म की कथा बताई है और सत्यवती ने बताया कि ये मेरा पहला लड़का है और नियोग पद्धति प्रचलित थी, तो कुंती ने कर्ण का जन्म क्यों छुपाया? देखिए कुंती का जब कर्ण का जन्म हुआ तब एक तो देखिए जो सत्यवती वाली बात है ना, उसमें आप समझिए सत्यवती ने भी बच्चे को रखा नहीं. पराशर ऋषि ने कहा कि नहीं मैं बच्चे को लेकर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है. तब वो मानी उस संबंध के लिए. इस परिस्थिति में कुंती जी ना फंस गई थी, राइट. छोटी कन्या है, जिज्ञासा वश उनको कोई ऐसा अट्रैक्शन था और बच्चा चाहिए था और एक्सटर्नल अफेयर रखना था, ऐसा सब नहीं था, है ना? देखना था कि भाई क्या हो रहा है, सच्ची में कोई आता है क्या. अच्छा, अब ये छोटी सी लड़की, दूसरी बार ये भी जानिए, जैसे हम कहते हैं कि हमको कर्ण के साथ इतनी दया आती है क्योंकि वो अपने पालन पोषण जो हुआ वो अपने माँ बाप के घर नहीं, फॉस्टर पेरेंट्स के घर हुआ. कुंती कहाँ रहती थी? कुंती भोज जिनके साथ वो रहती थी वो कोई उनके सगे पिताजी थोड़ी थे, वो तो उन्होंने दत्तक लिया हुआ था, राइट. तो जो दत्तक जिनको लिया है उनके लिए आपको और भी लगता है कि बाप रे मेरे कारण उन पे नाम ना आए. ये कन्या की आप मनोदशा देखिए, वो उस समय क्या करेगी, राइट. तो उस समय she couldn't handle it and she did what she did. उन्होंने ये अच्छा समाज क्या बोलेगा ये सब करके नहीं किया है. She didn't know how to handle it. और उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो नियोग का जो ऑप्शन है वही पांडु को कहती है ना कि इसके द्वारा हो सकता है. When she was mature and she knew it was acceptable. I'm sure the audience can go on and on with the questions, but we are really running out of time. Friends, let's hear it for the one and only Ami Ganatra. There's a saying in Sanskrit, Vyas Uchishtam Jagata Sarvam. And I personally have been, whatever happens in the universe, whatever happens in the world is Jutha, is Uchishta of Vyas. So we are all continuing with the legacy of Vyas, with Vyas. There's nothing outside the Mahabharata. And today I learned a very interesting fact. Ami means Amrit. And this is what Ami ma'am has been doing. Always sharding the Amrit of her repetition of these two great epics. And we can only pray that she goes on and on and on. And there are many more volumes of the two epics. And may the Mahabharata teach us, may the Ramayana teach us not to have a Lanka Kand in our home or in our society, not to have a Kurukshetra in our homes or in our society. So with that prayer, let me end today's session. Thank you for being such a wonderful audience. And once again, thanks to our special guest, the inimitable Ami Ganatra. Ma'am, we hope to have you again. Thank you so much. Perspective of characters, your research is definitely remarkable. And आपने जो कुंती माँ भी सारे characters जो आपने बोले हैं, I think the audience just look at them, they're truly intrigued by this. And definitely Supanda sir asked such relevant questions and made this conversation very interesting. So give them a big hand, guys.